Hello students. So today we are going to study a very interesting poem, Macavity, a Mystery Cat. I hope you will enjoy the poem and understand its benefits. Okay, so this is about the poet. T.S. Eliot, Thomas Stearns Eliot. You can read about him when he was born and where he was born. He was an essayist, a critic, a playwright, and one of the well-known poets of the 20th century. And some of the famous poem, The Wasteland, his very famous poem, Wasteland, and Naming of Cats, and of course, Macavity. Okay, this is the poem. So you can see, at a glance, you can see the poem. It has got 4 stanzas. Macavity's a mystery cat. He's called the hidden paw. For he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. So one by one, we will take one stanza and have full explanation on it, along with word meanings, along with poetic devices, rhyming scheme, everything. And in the end of this video, we will be having questions for you, which you can solve. Okay. So first we will take the first 4 lines explanation. Okay, this is the first 4 lines. So you recite after me. Macavity's a mystery cat. He is called the hidden paw. For he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. So now you also recite the poem after me. Okay, I hope you have recited the poem. Now let's see the word meanings. Defy. What do you mean by defy? Means disobey. कहना नहीं मानना है ना किसी. Bafflement means confuse. Scotland Yard क्या है? पुलिस है ना? It is the name of a police. The flying squad despair. Despair means they are hopeless. So the Macavity is a very mysterious cat because it is not clear. Nothing is known about it. It's obscure. He is described as hidden paw. Why hidden paw? Because he does accomplish all the works of crime in complete secrecy. So full complete secrecy यानी पूरा गुप्त रूप से वो अपना पूरा क्राइम को कर देते हैं. Accomplish means fulfill कर देते हैं अपने क्राइम को. वो मैकाविटी जो कैट है उसके बारे में है ना. और टू जस्टिफाई दैट ही इज अ क्रिमिनल ही डिफाइज लॉ. और ये जस्टिफाई करने के लिए कि वो एक क्रिमिनल है, वो लॉ को ही नहीं मानता है, डिफाई करते हैं लॉ को, डिसोबे करते हैं लॉ को. और फ्रॉम इवन द स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड, यानी ये पुलिस जो है स्कॉटलैंड यार्ड की और जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं. मैंने हाईएस्ट रैंक ऑफ पुलिस जो है वो भी उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं. एंड दिस मैकाविटी इज द रीजन ऑफ फेलियर एंड होपलेसनेस फॉर पुलिस एजेंसीज. इसलिए वो लोग फेल हैं क्योंकि दे आर नॉट एबल टू कैच मैकाविटी. मैकाविटी जो है वो क्राइम करके और सीक्रेटली वहां से गायब हो जाता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग फेल हैं, वो लोग होपलेस है. Whenever there is a crime discovered, Macavity is not to be found there. और जब भी कोई क्राइम होता है तो मैकाविटी वहां पे नहीं होता. यानी पुलिस जब तक पहुंचती है तब तक मैकाविटी वहां से गायब हो जाता है. तो एक मिस्ट्री है ना, जिसको कोई नहीं जानता है. अब इसके राइम स्कीम हम ले लेंगे. ए कैसे? पॉ लॉ, ए डिस्पेयर देयर, बी. क्लियर? तो ये हमारी राइमिंग स्कीम है. और ये पोएम जो है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैजुरेशन है एक कैट के बारे में, कि कैट को कैसे उन्होंने एक बहुत ही बेफिलमेंट है जो बहुत कंफ्यूज करती है स्कॉटलैंड यार्ड को, बहुत मिस्टीरियस है. तो कैट के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें कि कितना कैट को पोएट ने हाईलाइट किया है कि कैट क्या क्या कर सकती है. ओके, आप देखिए पॉ की आप पिक्चर देख सकते हैं. पॉ माने पंजा. देन यू कैन सी द हिडन पॉ. बिल्ली कैसे चलती है, बिल्कुल दबे पाँव. दिख रहे हैं आप, दबे पाँव. देन क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं. स्कॉटलैंड यार्ड, ये पुलिस का मैंने फोटो दिया ताकि आपको पिक्चर दिमाग में बैठ जाए कि स्कॉटलैंड यार्ड. फ्लाइंग स्क्वाड माने होता है ये जो एग्जाम्स होते हैं ना उसमें भी फ्लाइंग स्क्वाड आती है. अचानक से पुलिस आके धावा बोलती है और चुपचाप से आती है और पकड़ती है चोरों को.
लेकिन यहाँ पर फ्लाइंग स्क्वाड, स्कॉटलैंड यार्ड सब फेल हो गए हैं। और डिस्पेयर आप देख रहे हैं, होपलेस, निराशा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कैच। तो आपको मजा आ रहा है पोएम में? वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। Okay, now second stanza. Again I will recite and you will recite after me. Macavity, Macavity. There is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air. But I tell you once and once again, Macavity is not there. देख रहे हैं कितनी ब्यूटीफुल राइमिंग स्कीम है इसकी। ए मैकाविटी ग्रेविटी है ना, ए स्टेयर देयर एयर देयर, तो आखिरी की चारों लाइन राइम कर रही है ना, स्टेयर देयर एयर देयर, तो ब्यूटीफुली। तब इसमें क्या कह रहा है पोएट, इसको समझते हैं हम लोग कि देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी की तरह कोई भी नहीं है। क्यों? ही इज अनपैरेलल, अनकम्पैरेबल, इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। ही इज यूनिक, अपने आप में एक यूनिक है। ठीक, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी कि जो हमने कानून बनाया है, ह्यूमन के द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं, ही हैज ब्रोकन देम। तो ही इज द मास्टर इन ब्रेकिंग द लॉज मेड बाय द ह्यूमंस। ही ब्रेक्स द लॉज ऑफ ग्रेविटी, केवल ह्यूमन के ही लॉ नहीं, ग्रेविटी का लॉ को भी वो ब्रेक कर दिया। कैसे? यानी कि जब वो जंप करता है तो हवा में ही उड़ता है। ग्रेविटी क्या कहती है कि जो भी चीज ऊपर से नीचे आती है ना, लेकिन ये कैट ऐसी है जो हवा में ही तैरती रहती है। He even breaks the law of gravity with his agile and astounding jump, jump लगा लगा के। When he jumps, he floats in the air, which makes even a fakir, fakir माने कोई भी एक फकीर जिसमें supernatural abilities होती है ना, साधु जिसको बोल सकते हैं हम लोग, लुक इन अ स्टार्टल्ड वे, वो भी आश्चर्य से देखता है, फकीर जिसको इतनी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिसके पास, है ना, वो भी लेकिन कैट को देखता ही रहता है कि अरे ये कैसे हवा में ही उड़ रही है। सर्चिंग मैकाविटी विल गिव फ्यूटाइल रिजल्ट, और आप जब उसको ढूंढने जाते हैं, फ्यूटाइल माने बिल्कुल यूजलेस, कोई आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। यू मे सर्च हिम इन द बेसमेंट और इन द एयर, बट यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड हिम। आप उसको हवा में ढूंढिए, बेसमेंट में ढूंढिए, मैकाविटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मैकाविटी इज नॉट देयर। क्लियर? तो लेविटेशन क्या है? फ्लोटिंग इन एयर विदाउट सपोर्ट। लेविटेशन क्या होता है? कि हवा में तैरना विदाउट सपोर्ट। ठीक, अब इसके हम थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देखते हैं। ये देखिए, पावर्स ऑफ लेविटेशन, देख रहे हैं आप कैट कैसे हवा में हवा में उड़ रही है, फ्लोट कर रही है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटी देखो, गोल 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 घूमे जा रही है कैट, क्योंकि इस पे ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगर कोई भी चीज है तो नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन ये तो नीचे नहीं गिर रही है, ये तो हवा में ही तैरे जा रही है। तो ये ब्रोक कर, ये जो कैट है ये लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ दिया है इसने, ह्यूमन लॉ को ही नहीं तोड़ा। ये देखिए आप, फकीर, फकीर सुपरनेचुरल पावर वाला व्यक्ति, वो भी आश्चर्य में पड़ जाता है। और जब आप मैकाविटी को ढूंढने जाएंगे बेसमेंट में या कहीं भी, तो मैकाविटी मिलेगी नहीं, क्योंकि देख रहे हैं आप उसकी जंप्स, उसकी मूवमेंट कितनी स्विफ्ट है, और वो कितनी फास्ट है। ओके, थर्ड, मैकाविटी अ जिंजर कैट। मैकाविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर मतलब क्या होता है? उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिंजर कैट जिंजर कलर की है ना, जिंजर कलर की, ग्रे सा कलर रहता है। हु इज थिन एंड टॉल विद संकिन आइज, जो बहुत लंबी सी है, पतली सी है, और आंखें उसके अंदर को धसी हुई है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन, तो ये कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर उसका पूरा दिया है, डिस्क्रिप्शन है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, अगर आप उसको जानते होगे, है ना, उसको आप पहचान जाओगे अगर आपने उसको दिया है। यू वुड नो हिम, फॉर हिज आईज आर सनकिन इन, सनकिन माने अंदर को धसी हुई, उसकी आंखें अंदर को हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट, उसकी आईब्रोज जो है वो ऐसा है जैसे थॉट, कुछ सोच रही हो। हिज हेड इज टाइट हाईली डूम, और उसका हेड बिल्कुल गोल है ऊपर से। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, वो निग्लेक्ट का ध्यान नहीं देता, तो उसका कोट जो है, उसका जो फर वाला कोट है वो गंदा हो चुका है। हिज विस्कर्स आर
अनकूम, इसके विस्कर्स जो है वो कूम नहीं है, मतलब उस पर कंघी नहीं की गई है, यानी बिखरे हुए हैं। विस्कर्स माने मूछें। He sways his head from side to side with movement like a snake. और वो अपना सर एक तरफ से दूसरी तरफ से ऐसे ऐसे गोल गोल सर को घुमाती है, जैसे कि कोई स्नेक हो, जैसे सांप नहीं होता है, ऐसे जब फन अपना उठा के कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे सोए करना, लहराना। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। और जब आप सोचते हैं कि वो सो रही है, बिल्ला सो रहा है, तो आप, वो सो नहीं रहा है, बहुत अवेक है, बहुत अटेंटिव है। ओके, तो आप इस पोएम को एक बार दोबारा मेरे संग पढ़िए। Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. तो मैकाविटी एक जिंजर कलर की कैट है, who is thin and tall with sunken eyes. You can recognize him when you see him with brow lined with deep thought. उसकी जो आईब्रो है वो ऐसे लाइन है जैसे कि बहुत गहरी सोच में है. He is very careful about his dress. He is never careful ना, बिल्कुल गंदा कोट है उसका. His coat is dusty with neglect. He even does not comb इसका, अपने मूछों को भी वो कभी comb नहीं करता, कंघी नहीं करता उनमें. When he moves with caution, he moves his head like a snake from left to right and vice versa. जब वो मूव करता है बहुत ध्यान से, तो अपने हेड को स्नेक की तरह इधर से इधर लहराता रहता है, अटेंड, बहुत केयरफुल रहता है वो. If you think that Macavity is half asleep, you are making a mistake. He is always wide awake. तो बच्चों कितना बढ़िया इसका आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी इमेजरी है इस पोएम में, कि आप एक पोएम को पढ़ के आप इसका पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, एक पूरी पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना. तो बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है, इसको आप अच्छे से समझिए और इस पोएम को एंजॉय करिए. इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कई बार कि डिस्क्राइब मैकाविटी, मैकाविटी को डिस्क्राइब करिए, तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान रखने हैं. अब आप देख रहे हैं आईज सनकिन इन, ये देखिए पिक्चर में इसकी आईज कैसे अंदर रखी हुई, और यहीं पे आप देख सकते हैं कि आईब्रोज कैसी लाइंड अप है ना, आईब्रो देखे ना आप कैट की कैसी लाइंड अप है. और ये देखो जिंजर कलर की कैट है, और कैसे वो अपना हेड को स्वे कर रही है, हेड को कैसे स्वे कर रही है जैसे स्नेक होता है. ये देखो इसका डर्टी कोट, इसका कोट कितना गंदा हो रहा है, मूछें उसकी बिखरी हुई हैं, अनकूम्ड है ना, और स्वेइंग इज हेड, वो अपने हेड को कैसे स्वे कर रही है. मजा आ रहा है ना ये पोएम को पढ़ के, बहुत बढ़िया पोएम है. ओके, नेक्स्ट. मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी. ये लाइन देखो पूरी रिपीट कर दी पोएम में, शुरू में भी ये लाइन थी, अभी फिर से है ये लाइन. तो पोएट इस चीज को एम्फसाइज करना चाहता है कि मैकाविटी जैसा तो कोई है ही नहीं. फॉर ही इज अ fiend in feline shape, a monster of depravity. एक fiend माने डेवल, एक कैट की शेप में एक डेवल है, शैतान है ना. अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मॉन्स्टर माने राक्षस, डिप्रेविटी माने मॉरल करप्शन, जो नैतिक करप्शन करते हैं, यानी कि क्रिमिनल. यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर. वो तुमको गली में मिल जाएगा, कभी तुमको चौराहे पे मिल जाएगा. बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, देन मैकाविटी इज नॉट देयर. लेकिन जब कोई क्राइम हो जाएगा तो मैकाविटी वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो एक डेविल है, बिल्ली के शेप में एक डेविल है ना, और एक राक्षस है जो मॉरल करप्शन करता फिरता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज करता फिरता है. तुमको वैसे वो दिख जाएगा गली में चौराहे में, लेकिन जब कोई क्राइम हो जाएगा तब मैकाविटी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा. ओके, तो रिसाइट करिए इस पोएम को. मैकाविटी, मैकाविटी, there is no one like Macavity, for he is a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime discovered, then Macavity is not there. इसकी राइम स्कीम देखो, AABB, Macavity, depravity, square, there. पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि क्राइम करके फिश चुरा के जा रहा है,
पतला दुबला सा है और भागे जा रहा है ना। So according to the poem, Macavity is a devil in the shape of a cat. He does not have any value of morality. कोई भी नैतिकता उसके अंदर नहीं है. He is master in moral corruption. You may meet him by chance at the by street or in a square, but you must be sure that when there is a crime, Macavity is not to be found there. क्योंकि वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए और फ्लाइंग स्क्वाड के लिए एक चैलेंज है ना। वो लोग डिस्पेयर हो गए, होपलेस हो गए, वो लोग पकड़ ही नहीं पाते। जब वो लोग जहाँ जाते हैं वो मिलता ही नहीं है, तो जब क्राइम हो जाता है तो मैकाविटी वहां से गायब हो जाता है। ये देखिए आप, ये है क्रिमिनल्स मॉरल करप्शन कर रहे हैं, है ना, किलिंग करना, मारना, मर्डर, ये सब, तो ये सब मॉरल करप्शन होते हैं। क्रिमिनल मॉन्स्टर, देखो मॉन्स्टर है ना, पूरा राक्षस की तरह दिख रहा है। फिएंड एक डेविल है ना, वांटेड फॉर एवरी डिवियस क्राइम, मैकाविटी रिवॉर्ड। ये देखो पुलिस ने उसके ऊपर एक रिवॉर्ड भी रख छोड़ा है कि मैकाविटी को जो पकड़ेगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो ये रिवॉर्ड है, मैकाविटी का फोटो लगा हुआ है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि एक कैट जो है वो पुलिस की नाक में दम की हुई है। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम। ये इसकी डिटेल समरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। मैकाविटी अ ब्रेकर ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, पूरी डिटेल समरी है, एक एक चीज इसमें डिटेल में आपको मिल जाएगी। मैकाविटी द अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, उसका कैरेक्टर। ओके, देन दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। You can go through them, you can pause the video, you read the question answers, and you can solve them also. And this is some exercises based on the poetry. Answers are there. Okay, so you can go through them one by one, true and false. Then these are some long answers also. Exaggeration. Has the poet used exaggeration for special effect? ये मैंने बोला ना कि पोएट ने बहुत exaggeration किया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया है। जैसे उसने क्या बताया कि वो ग्रेविटेशनल लॉ को भी नहीं मानता है ना, और एक फिएंड है फिलाइन शेप में, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, ऐसे बड़े बड़े शब्दों का यूज किया है एक किसके लिए, एक बिल्ली के लिए। और वो ये भी बता रहा है कि स्कॉटलैंड यार्ड फ्लाइंग स्क्वाड की पुलिस जो है वो डिस्पेयर में आ जाती है ना, वो होपलेस फील करती है। तो ये सब एग्जैजरेशन है, यस, है ना। क्यों किया है उसने, फॉर स्पेशल इफेक्ट, है ना, ताकि कैट के लिए हमारा इंटरेस्ट बढ़े। ये देखिए, ये फिगर्स ऑफ स्पीच इस पोएम में जो यूज हुए हैं इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सिमिली, सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, है ना। जैसे सच एज ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक। इस लाइन में देखो सिमिली है ना, जैसे कि सांप। तो बिल्ली का तुलना किससे की है, जैसे सांप। केवल एक चीज कंपेयर इसमें कॉमन है सांप में और बिल्ली में, दोनों का सर को हिलाना। जैसे सांप अपने फन को इधर से उधर हिलाता है, ऐसे बिल्ली भी अपने सर को इधर से उधर हिला रही है। तो सिर्फ एक कंपैरिजन है और उसके लिए सिमिली यूज की गई है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन माने एक जिसमें हम ह्यूमन क्वालिटीज बताते हैं कोई इनएनिमेट थिंग्स में या एनिमल्स में, है ना। तो वो कह रहा है कि देन ही सेज ही चीटेड कार्ड्स, और उसमें वो कहता है कि वो लॉ ब्रेक कर रहा है। तो पूरा इसमें क्या है, उन्होंने मैकाविटी को एक ह्यूमन की तरह बताया है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, जहाँ पे भी ही लगा है वहाँ सब पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबोल, ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बहुत एग्जैजरेशन किया जाता है ना। ये पूरी पोएम में आप देख रहे हैं कि जो कैट है, कैट क्या ऐसी होती है क्या, नहीं होती है ना। तो कैट को एग्जैजरेट किया गया, ठीक है, द मिस्ट्री कैट। तो हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन हैं इसमें, जैसे वो बेफिलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, तो ये बड़े बड़े उसके लिए तुलनाएं की गई हैं। तो ये हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन हैं। ओके, और लास्ट में कई लिटरेरी टर्म्स, ह्यूमरस है, यस, पोएम पढ़ के हंसी आती, मजा भी आता है। सिंबॉलिज्म है ना, एंथ्रोपोमोफिज्म, एंथ्रोपोमोफिज्म एंड पर्सोनिफिकेशन, ये बहुत यूज किया गया है। थॉट ऑफ हैविंग अ हिडन मीनिंग बिहाइंड अ स्टोरी यूजिंग अ सिंबल, गिविंग एन एनिमल ह्यूमन characteristics and giving inanimate objects human qualities makes reader laugh, especially when carefully analyzed. The reader discovers the author is actually making fun of someone well known. Since Eliot uses all three of these common literary techniques, it makes the poem more enjoyable.
और इसीलिए ये पोएम बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, क्योंकि इसमें सारी ह्यूमर भी है, सिंबॉलिज्म भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। और आपको ये पोएम बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के, आई होप। And you please subscribe the channel and solve the question answers and wait for my another video. Thank you. Have a nice day. Bye.